Today we are going to start second chapter of modern physics, that is atoms. और क्लास 9th में पढ़ के आए हैं थोड़ा सा कौन कौन सी थ्योरीज एटम से रिलेटेड हैं. एक आपने पढ़ी थी थॉमसन थ्योरी which gives you the model of atom, and first model of atom given by Thomson, and he gave plum pudding model, watermelon type structure in which the electrons are embedded over it, the negative charge particles are embedded in a positively charged sphere. This model was rejected because the atom on this model is highly unstable, whereas in reality atom is a very highly stable particle. Now when this theory fails, we come across with the Rutherford model of atom, and he gave the planetary model of atom. That is, according to this model, the electrons are revolving around the nucleus in fixed, or we can say the stationary orbits, and but this theory also fails. Drawbacks क्या थे इसके? Accelerated charged particles loses energy, and by losing energy or some electromagnetic radiations continuously, so उसका ऑर्बिट जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, एंड स्टेट कम्स व्हेन इट कोलैप्स विद द न्यूक्लियस. सो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, electrons are revolving and they are having some acceleration which is given by v square by r, and hence the revolving electron must lose energy continuously. So using जो Rutherford theory है, atom is unstable, atom must give some continuous spectrum as well. And in reality we all know that atom is a stable and it gives only line spectrum. What is the difference between line spectrum and a continuous spectrum? If a particle emits the wave or light of frequency or different wavelengths, अलग अलग कलर्स के आपको मिल रहे हैं, then it is called as spectrum. different wavelengths की लाइट को अगर वो emit कर रहा है, then it is called spectrum, or we can say a continuous spectrum. If it gives you a band of it, if it is giving you a single color wavelength emitted through it, that is called a line spectrum. And atoms give you a line spectrum, but Bohr gives you the statement that it will give a continuous emission of the electromagnetic radiation, so a continuous spectrum. And again this theory fails, and आप पढ़ के आए हो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी करा था, जिसमें उसने प्रूव करा था कि अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज इनसाइड इट, राइट, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, एंड एज सुन एज अ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड इट, एज it radiates some electromagnetic radiation, so its orbit goes on decreasing, its size goes on decreasing, and a state come when it collapses with the nucleus. और जो गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट था उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस क्या थी? वी हैव गॉट 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस. द फर्स्ट वन इज़ के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें स्लाइटली डेविएशन हुआ व्हेन अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड विद गोल्ड फॉइल, राइट. एंड वाई वी चूज गोल्ड फॉइल नॉट अदर एलिमेंट्स? बिकॉज गुड रिजल्ट्स के लिए हमें हायर एटॉमिक मेटल की चॉइस चाहिए थी, सो वी टुक दिस गोल्ड. एंड देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्लाइटली डेविएट हुए अपने पाथ से, एंड द सेकेंड वन इज कि कुछ अनडेविएटेड क्रॉस कर गए शीट को, एंड द थर्ड वन इज 180 डिग्री से वापस रीबाउंड बैक हुए. सो वी हैव 3 ऑप्शंस रिलेटेड विद दिस. डायग्रामेटिकली देखो, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का शो भी करा है, एंड इसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करी है. जब 180 डिग्री रीबाउंड बैक होता है तो कितना क्लोज जाकर वो वापस आता है, दैट डिस्टेंस इज सेट टू बी द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर r0. दिस इज अवर टारगेट न्यूक्लियस हुज चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इज प्लस Ze. पॉजिटिवली चार्ज होता है, Z उसका एटॉमिक नंबर हो गया. r0 इज सेट टू बी द क्लोजेस्ट पॉइंट जहां से वो वापस गया है, सो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच. एंड इम्पैक्ट पैरामीटर एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है. इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस. जब अल्फा पार्टिकल स्लाइटली डेविएट हुए टारगेट न्यूक्लियस से फार डिस्टेंस पे, इन 2 पाथ्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
180 डिग्री रीबाउंड बैक और स्लाइटली डेविएट, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, व्हेन दिस पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम दिस टारगेट न्यूक्लियस, सो ये लाइंस पैरेलली अपीयर हो रही हैं, सो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज सेट टू बी द इम्पैक्ट पैरामीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर बी. व्हेन बी इज जीरो, है ना, जैसे बी को अगर हम जीरो करें दैट इज अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड बाय 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग. एंड व्हेन बी इंक्रीजेस, अगर आप बी को बढ़ाते हो, बी को इंक्रीज करना है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग. दीज टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर. पेपर में सिर्फ डेफिनेशन ही आई हुई है, सो इस पे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे. वी हैव अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. एज सुन एज आप देखो डिके ही दिखा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, सो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ साथ अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग. It is inversely related with it. And what is the definition of R naught? That is the distance of the closest approach. When alpha particle is directed towards the target nuclei, immediately उसके पास the impact parameter is 0. And at that point, the alpha particle retraces its original path from the point. जिस point से वो वापस आया, उस point का distance from the center of the target nucleus is said to be the distance of the closest approach, and the radius of the nuclei will be lesser than or it may be equal to the closest approach distance. That is the distance of the closest approach R naught. And as we know कि जैसे जैसे आप distance of closest approach तक पहुंचोगे, है ना, the whole of the kinetic energy of the alpha particle is getting converted into electrical potential energy. So the kinetic energy of the alpha particle at the point of the closest approach, right, is equals to electrical potential energy which is equals to K Q1 Q2 upon R. Potential energy इसलिए R लिख लें, that is not कोई force नहीं है जो कोलम्बियन की तरह K Q1 Q2 upon R square लिखा हो. It is electrical potential energy K Q1 Q2 upon R. So दो चार्ज हैं, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे चार्ज डिवाइडेड बाय देयर क्लोजेस्ट अप्रोच जितना डिस्टेंस रह गया आर नॉट, और के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, राइट, वेयर वी अल्फा के लिए लिख रहे हैं तो एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर. और अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, ठीक है, और चार्ज उसका दुगना होता है. न्यूक्लियस पे चार्ज ZE है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 × E. एंड 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जूल्स में कन्वर्ट करना है तो E यानी 1.6 × 10⁻⁻19 को बेटे उससे मल्टीप्लाई कर दो. थर्ड थ्योरी कौन सी आई, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए उसने इसे एक्सप्लेन करा, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड दिस थियरी स्टेट्स दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग द एनर्जी, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि एनर्जी लूज होएगी, एंड नाउ ही स्टेट्स के he states कि electron is revolving around the nucleus in circular orbits. In those stable fixed orbit के no energy will be released from it. Those orbits जिसमें वो revolve कर रहे हैं around the nucleus without losing energy are said to be the special orbits, or we can say the fixed orbit or the stationary orbit. And the angular momentum of the electron associated with it is integral multiple of h/2π. फॉलो करके let Vn be the velocity of electron in nth orbit and radius is Rn, or m be the mass of electron. So angular momentum mvr is equals to nh/2π. Angular momentum mvr is equals to nh/2π. This is the postulates of the Bohr's theory. अभी भी बोहर ने आपको देखो ये बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, और हमें इससे आगे नहीं पता, बट एक्चुअली बोहर्स थियोरी भी फेल हुई थी. और इससे नेक्स्ट थ्योरी आई थी सोमरफील्ड्स थियोरी, विच गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस के इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. सो बोहर थियोरी इज नॉट द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल थियोरी. आफ्टरवर्ड्स सोमरफील्ड थ्योरी भी आ चुकी है, जो अभी एटलीस्ट इस बारी सिलेबस में नहीं है. और क्योंकि अब बोहर के जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं, उनमें से कोई भी एनर्जी लूज नहीं हो रही. और उसने एक साथ में क्लॉज भी दिया, द इलेक्ट्रॉन विल लूज द एनर्जी when it jumps from energy in the form of course electromagnetic radiation, when it jumps from higher orbit to lower orbit, and it will gain energy when it jumps from lower orbit to higher orbit.
एंड व्हाटसोएवर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिट, उतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी. एंड E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और अगर em and en आर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ mth एंड nth ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम nth टू mth, द जो भी उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज होंगी उसकी एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस होगी, राइट. सो न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, यहाँ पुट कर सकते हैं hc बाई लैम्डा. एंड दो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इन दो लेवल्स का डिफरेंस होगी, और इस डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करे तो वो लोअर टू हायर में जंप कर सकता है. एंड अनदर पॉइंट इज इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन ओबेज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. ये पॉइंट आपने पहले नहीं पढ़ा, जो क्लास 9th में आपको बोर्ड्स के पोस्टुलेट लिखवाए गए थे. नाउ जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट इनटू इट, दैट इज इनसाइड द एटम इलेक्ट्रॉन ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स थ्योरी. और इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास एक सिंगल डेरिवेशन है कंप्लीट बड़ा सा, जिसमें हमने वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैलकुलेट करना है यूजिंग द बोहर्स पोस्टुलेट्स. तो कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 एंड 5. एग्जाम में ये नहीं कि बोहर्स थ्योरी आ गई तो मुंह उठा के सारा का सारा डेरिवेशन लिख दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन कि वो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, उस क्वेश्चन को समझो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है. सिर्फ अगर 2 या 3 ओनली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन आस्क्ड तो सिर्फ इतना ही करना है, राइट. ये नहीं कि टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करा है, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही करना है. सो वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, राइट. कल करेंगे ये वाली डेरिवेशन, और इस चैप्टर में है ही ये सिंगल डेरिवेशन. कम से कम 4-5 पेजेस की ये सिंगल डेरिवेशन है, क्योंकि आपने इसमें 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. अगर एक चीज़ के लिए भी 1 पेज है तो टोटल 5 पेजेस की हो गई ये सिंगल डेरिवेशन. सो घबराना नहीं है, ऑल रिलेशंस आर रिलेटेड विद ईच अदर. मैं एक एक स्टेप को क्लियरली बोलूँगी, और अगर तुम्हें कोई डाउट होएगा तो मैं रिटर्न उसके लिए शीट्स पे उन्हें करके भी आपको वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है. और जब आप बोर्ड्स थ्योरी के इस डेरिवेशन को करोगे, सो जैसे जैसे वीडियो आप सुन रहे हो उसके साथ साथ आप उन स्टेप्स को भी प्रॉपरली देखो, और उन स्टेप्स को एक रफ शीट पे लिखो कि जो स्टेप्स मैं बोल रही हूँ आप वैसे वैसे लिखो. बार बार वीडियो को पॉज करो और देखो कि वही रिजल्ट सेम आ रहे हैं जो आपने डेरिवेशन में नोट किए हुए हैं. अगर आप इस तरह से करोगे तो डेरिवेशन एक बारी में याद भी हो जाएगी. सो इस डेरिवेशन को ध्यान से करना है, बिकॉज पेपर में और कोई ऑप्शन नहीं है. इस सिंगल डेरिवेशन है, और चैप्टर 5 नंबर का आना ही आना है 12 नंबर की मॉडर्न में से. सो उसमें से एक पार्ट तो ज़रूर आएगा, चाहे वो 3 नंबर का डेरिवेशन के साथ 2 नंबर का न्यूमेरिकल आए, या 3 नंबर के न्यूमेरिकल के साथ कोई छोटा सा डेरिवेशन का कोई छोटा पार्ट आपसे पूछ ले, ठीक.